उधर सोए थे, हमारे बच्चे भी सोए थे, हम ऐसे सोए थे, हमें कोई पता नहीं। जब हमें आवाज आई हम बाहर खड़े हुए, जैसे हम खाए हुए ऐसे ही गोला हमारे मकान पर गिर पड़ा। हमारे बच्चे हमारियाँ पहुँच सब जख्मी, कोई बर्तन नहीं, कोई खाने पीने की चीज नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं रहे। हम तो वीरान हो गए, हम क्या करेंगे? नुकसान हमारा बहुत हो गया, कुछ रहा ही नहीं है, कुछ नहीं रहा ही नहीं हमारे पास। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कुछ कैश था वो भी जल गया है, बच्चों के लिए कुछ सामान बच्चों को खरीद के रखा था वो भी खत्म हो गया है ही नहीं, काला के सिवा कुछ नहीं बचा ही नहीं है कुछ भी। हम खुद जख्मी है, ये देखो हम खुद जख्मी है, पैरों में भी लगी है, हमारे बच्चे एडमिट है, वो होते हैं। बंद होना चाहिए, अमन होना चाहिए, बस दोनों से अमन होना चाहिए। ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್ ಸತತ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಭಾರತ ಚೆಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಕ್ ಉಗ್ರರನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಪಾಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಗರಿಕರನ್ನ. ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಪಾಕ್ ದಾಳಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವು, ಮನೆಗಳು ಧ್ವಂಸ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಜನರ ನರಳಾಟ. ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜನರು. ಪೆಹಲ್ಗಾಂನಲ್ಲಿ 26 ಅಮಾಯಕ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ 9 ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಉಡಿಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಖುರೇಶಿ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಒಂದಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಅದನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ನರಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ನಾಗರಿಕರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶೆಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ನರಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಮನೆಗಳು ಧ್ವಂಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಜನ ನರಳಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕೋದೇ ನಾವಿನ್ನು ಡೌಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಾಗರಿಕರು. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿರಾಮ ಹಾಡಿ, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಮಾಯಕರಾದಂಥ ನಾವು ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಾವು ನೋವಿನ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ನಮಗ್ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಬದುಕಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. आपका नाम? ताजा बेगम। कहाँ रहते हैं? मैं नौपुरा में रहती हूँ इस्लामाबाद। बताइए क्या हुआ, कितनी शेलिंग? सब बहुत शेलिंग हुई। हम उधर सोए थे, हमारे बच्चे भी सोए थे, हम ऐसे सोए थे, हमें कोई पता नहीं। जब हमें आवाज आई हम बाहर खड़े हुए, जैसे हम खाए हुए ऐसे ही गोला हमारे मकान पर गिर पड़ा। हमारे बच्चे हमारियाँ पहुँच सब जख्मी है, वो बारामूला एडमिट है, और हमारे घर में कुछ नहीं रहे। हमारे भाई के बच्चों के उनके सब घर जल गए, जो कुछ कपड़े लगाए हैं वही है, कोई बर्तन नहीं, कोई खाने पीने की चीज नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं रहे। हम तो वीरान हो गए, हम क्या करेंगे? नुकसान हमारा बहुत हो गया, कुछ रहा ही नहीं है, कुछ नहीं रहा ही नहीं हमारे पास। 2 मकान है मगर वो भी खत्म है, डैमेज हो गए, कुछ भी नहीं है उनमें रहा है। हम क्या करेंगे? जंग से कुछ नहीं होता है। हम खुद जख्मी है, ये देखो हम खुद जख्मी है, पैरों में भी लगी है, हमारे बच्चे एडमिट है। वो आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? हम होते हैं, बंद होना चाहिए, अमन होना चाहिए, बस दोनों से अमन होना चाहिए। अल्लाह ताला इनको रहम दे, अमन दे, हम रहम से रहना चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद यूनुस साहब। बताइए क्या हुआ, कितनी शेलिंग हुई? सर शीलिंग तो बहुत हुई, शीलिंग इतनी हुई कि किसी कहने की बात ही नहीं। शीलिंग में हमारा बहुत नुकसान हो गया। एट ए टाइम 2 गोले पड़े हमारे मकान के ऊपर, बच्चे छोटे छोटे 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं, और फफेरी भाभी है वो भी जख्मी हो गई है। माल मवेशी भी खत्म हो गया है, कपड़ा लगाने के लिए कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कुछ कैश था वो भी जल गया है, बच्चों के लिए कुछ सामान बच्चों के लिए खरीद के रखा था वो भी खत्म हो गया है ही नहीं, काला के सिवा कुछ नहीं बचा ही नहीं है कुछ भी। तो कितना नुकसान हो गया? नुकसान की कहने की बात ही नहीं है,
नुकसान तो सब कुछ खत्म हो गया है। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए भी रहा नहीं कुछ भी, कपड़ा बनाने लगाने के लिए था नहीं कुछ, जो लगा है यही लगा है। आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? हम तो कहते हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, बंद होना चाहिए इंशाल्लाह। इनको आपस में अल्लाह ताला तौफीक दे। गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? गवर्नमेंट से अपील करेंगे हमारा कुछ सोचें, हमारे कुछ देखें। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे भी दार पलाने, कोई किसी के घर में पड़े हैं, कोई किसी के घर में पड़े हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट सोचे, हमारे बारे में सोचे। रहने के लिए जगह नहीं है कुछ भी। हम उसी दिन भागे थे किसी के दूसरे के पड़ोसी के गांव में मकान छोड़ के, अब जा रहे हैं देखने के लिए, वो लोग क्या देखेंगे? अब जगह का आपने बंदोबस्त करना है कुछ ना कुछ, पर भी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं तो कुछ ना कुछ सोचे हमारे बारे में। देखो जी, 7 मई को हमने रात को 3 बजे वहाँ से गोले आते देखे थे, पर गवर्नमेंट को बैठकर बातचीत करनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है। गरीब वो लोग हैं, गांव के देहात के रहने वाले, नुकसान काफ़ी हो रहा है। क्योंकि भाई फिर हम सुबह गए थे तो हॉस्पिटल में देखे बहुत बच्चियाँ, बहुत लड़कियाँ ज़ख्मी हुई, उनको रेफर कर रहे हैं बारामूला, श्रीनगर। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े में कुछ भी फ़ायदा नहीं है, मार कुटाई में, कि आप बैठकर बात करें। हमें इस लड़ाई में कोई फ़ायदा नहीं है। तो कितना नुकसान हो रहा है बिजनेस का? काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी लोग परेशान हैं। यहाँ के लोग जो थे, जो मेन शहर के यहाँ उड़ी के, वो तो लोग बारामूला, श्रीनगर चले गए। जो देहात के हैं वो अपना घर छोड़ के, तो अभी कोई गया कोई नहीं गया, वहीं पे बैठे हैं। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? कोई वहाँ पे भी इंतज़ाम नहीं है, बैंकर भी नहीं है, काफ़ी मुश्किलात है यहाँ पर। रेलवे स्टेशन ने तैयारी देखी है, एम्बुलेंस, फायर सर्विस वहाँ पर है, पर हॉस्पिटल में इंतज़ाम नहीं है। हमें देखा था 7 जुलाई को सुबह 8 बजे जाकर, वहाँ पर बच्चियाँ जख्मी थी, तो वहाँ पर उनको रेफर बारामूला, श्रीनगर कर रहे थे। तो ऐसे सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नुकसान ही यहाँ पर हो गया तो उनको कौन बचाएगा? बैठकर बातचीत करें उनसे। तर्क सुकून भी करेंगे, चलेंगे। तो कुछ लोग जो यहाँ पर हैं वो भी सहमे हुए हैं, हाँ, सोचते हैं खबर कब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट ने ये एडवाइजरी भी की थी कि रात को ऐलान भी करवाए थे मस्जिदों में कि अपना अपना ये करना, अंदर रहना, ये गैस रखना, राशन रखना, हर एक चीज़ रखना, तो सेफ्टी अपने के लिए अंदर रहना। फायर सर्विस, एम्बुलेंस भी सब कुछ है, फायर सर्विस भी है, एम्बुलेंस से। अलता गैस की थोड़ी प्रॉब्लम है, राशन वाशन की थोड़ी खास नहीं है। सोपोर से एक लाई है और कुच्चू मुकाम से एक गाड़ी लाई है, पटन वनीगाम से भी एक लाई है। हमने यहाँ पर 5 गाड़ियाँ अलर्ट रखी है, क्योंकि हालात यहाँ पर थोड़ा ख़राब है, शेलिंग हो रही है। कभी अगर यहाँ पर आग शाग लगी शेलिंग की वजह से, तो हमारा क्रू अलर्ट है, हमारे लड़के जो जवान है वो तैयार है। जो आप देख रहे हैं पीछे, मेरे पीछे ये जो अभी आपने ड्रिल भी की है गाड़ियों की, तो ये हम सब रेडी है इसके लिए। तो क्या क्या मशीनरी आप लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं? हमारे पास है फॉर्म टेंडर भी है हमारे पास, वाटर टेंडर 5 है और इंजन 5 है। उसमें हमारा तमाम इक्विपमेंट साथ होते हैं, जैसे कि होज होते हैं या रेस्क्यू के लिए सामान, वो तमाम इक्विपमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी रेडी होते हैं। ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಟೈಮ್ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ಸೇರಿಸೋದು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್, ಪಟೇಲ್ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ರಾಧಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಸಾನೂರ್ ವಿಲೇಜ್, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕ್. ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 8095341169 8762119917. ಇಂತಹ ನೈಜ ಕುತೂಹಲಭರಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜನಪರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗೋದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9606037450 ಅಥವಾ 9353224116. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಜನಶಕ್ತಿಯೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ.